Hello everyone, welcome to my channel Rajneesh Kaur. After second chapter, now we are here again to do the third chapter of your 8th class science, that is synthetic fibers and plastics. Now we talk about the fabric. Okay, आप different types के clothes पहनते हो बच्चे, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो fibers हैं, ये जो clothes हैं हमारे, ठीक है, इनके पीछे इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं, वो नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं। आज हम इसी चैप्टर में ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, आपने प्रीवियसली क्लास 6 में, क्लास 7th में आपने पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जिसमें आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा, एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा। Now you are here with synthetic fibers, which are also known as artificial fibers and plastics. Now let's start the chapter. The clothes which we wear are made of fabrics we know very well. Now fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. You have learnt it in earlier classes. Can you name some natural fibers? Yes, you can name silk, cotton, jute. These are the examples of natural fibers. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. ये काम आप सभी कर लोगे और करने के बाद आपने 3.1 टेबल में देखो एंट्रीज क्या फिल करनी है बेटा। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में आपने आर्टिकल का नाम लिखना है जो आपके घर पे है और फिर वो किस फाइबर का बना हुआ है, वेदर इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर, वो मेंशन करना है आपने, ठीक है। देन व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि आपने जो आर्टिफिशियल में कैटेगराइज किया है चीजों को, तो आपने उनको एज अ आर्टिफिशियल क्यों लेबल किया, उसके पीछे क्या रीजन है। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, they are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, they are made by human beings. They are man-made. Okay, we made them. They are not natural. That is why these are called synthetic or man-made fibers. Now here, what are synthetic fibers? This is your first question of this chapter, that you have to tell what are synthetic fibers. Now try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads. यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक नेकलेस का, ठीक है, वो जो डिफरेंट टाइप्स की बीड्स हैं इसमें एक थ्रेड के थ्रू ज्वाइन की गई है. Try to join number of paper clips together to make a long chain. हाँ, 3.1 बी में जैसे आपको दिखाया गया है, बीड्स और पेपर क्लिप्स दे आर ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. इन चेन्स को दिखाने का मतलब क्या है बेटा आपको, कि अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है ना. हम यहाँ पर आपको थ्रेड और बीड्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सिंथेटिक फाइबर की हम बात कर रहे हैं वो भी इसी तरह से चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, जो आपस में ज्वाइंट होते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है. यहाँ बीड्स की जगह क्या है हमारे पास, केमिकल सब्सटेंस. Many such small units combine to form large single unit called a polymer. और इसी तरह से ये केमिकल सब्सटेंसेस आपस में ज्वाइन किए हुए हैं और एक लार्ज सिंगल यूनिट को बनाते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमर. तो व्हाट इज पॉलीमर? Polymer is a large single unit made up of very small units when they are combined together. Okay, when they are combined together. Now the word polymer comes from two Greek words. What is the meaning of poly here? Poly means many, बहुत ज्यादा, ठीक है, and mer meaning part, एक हिस्सा उसका, unit. So a polymer is made of many repeating units. आप इस तरह से polymer की definition भी याद रख सकते हो कि ये large single unit तो है but it is made up of many repeating units. Okay. Now next हम पढ़ेंगे polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose.
तो यहाँ पे आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन जो है एमसीक्यू तैयार हो रहा है एक, कि सेलुलोज से जो बना है ना पॉलीमर, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, पॉलीमर्स, जो कॉटन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो एक लार्ज यूनिट को बनाती हैं चेन फॉर्म में। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ पर जो पॉलीमर है दैट इज सेलुलोज, समझने की कोशिश करो। सेलुलोज इज अ पॉलीमर, ठीक है, एंड इट्स स्मॉल यूनिट्स आर, जिनको ज्वाइन करके बनाया गया है सेलुलोज पॉलीमर को, दे आर ग्लूकोज यूनिट्स। क्लियर? तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यू कैन डू एज यू वांट। Types of synthetic fibers. Now, different types of synthetic fibers are there. Man-made fibers are there. Artificial man fibers are there. Number 1, rayon. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm, and it was discovered firstly in China. That was kept as closely guarded secret for a long time. है ना, बहुत लंबे समय तक इसको एक सीक्रेट ही रखा। वैसे चाइना को ये हैबिट है सीक्रेट्स रखने की। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है, जो फैब्रिक हमें जो क्लोथ मिलता था सिल्क फाइबर से बहुत कीमती होता था। इट वाज वेरी कॉस्टली, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसमें अट्रैक्शन बहुत थी, हर किसी को अपनी तरफ खींचता था ये। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो क्या किया, ऐसी कोशिशें की गई कि हम आर्टिफिशियली भी सिल्क को बना लेते हैं। भाई सिल्क वॉर्म की क्या जरूरत है ना, इसको मैन मेड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा दिमाग में आया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. लो भाई, हो गया कमाल। 19th century के एंड में जो साइंटिस्ट थे उनको इस काम में सफलता मिल गई। ठीक है, उन्होंने ऐसी सिल्क जैसी फाइबर की प्रॉपर्टीज वाला सेम, ठीक है, एक फाइबर तैयार कर लिया। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प क्या होती है बेटा, लकड़ी का गुद्दा। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट दी उसको, वुड पल्प को, और एक ऐसा फाइबर जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से मिलती जुलती थी, भाई खोज निकाला। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो आज रेयन की साड़ी, सूट्स आप देखो, आपके मम्मा आपको दिखाएंगे आपके घरों में, तो दे आर नथिंग बट सिंपली दे आर आर्टिफिशियल silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. ठीक है, इसका नेचुरल सोर्स तो वुड पल्प ही है, लेकिन फर्दर केमिकली ट्रीटमेंट क्योंकि इसको दी गई है, तो इट इज अ मैन-मेड फाइबर. It is cheaper than silk and can be woven into silk fibers. It can also be dyed in wide variety of colors. ठीक है, रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका क्वेश्चन, यूजेस ऑफ रेयन। ठीक है, यूजेस ऑफ रेयन, तो फर्स्ट तो ये इकोनॉमिकल है, चीपर है देन सिल्क, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सेकेंडली इसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है। देन रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। दीज आर द यूजेस एंड एडवांटेज ऑफ रेयन फाइबर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ रेयन। ओके, नाउ हियर नायलॉन की अगर हम बात करें, इट इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब जैसे रेयन में हमने नेचुरल सोर्स की बात की थी, वुड पल्प से बना है ना, लेकिन नायलॉन में ऐसी कोई हम बात करेंगे नहीं। ठीक है, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। यू हैव टू अंडरलाइन दिस इन योर बुक ऑल्सो। It was prepared from coal, water and air. This line is very much important. It was first fully synthetic fiber. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बाद में भी आ सकता है, कॉम्पिटिशन्स में भी, that what was the first fully synthetic fiber? आपको उसका नाम बताना है। तो कौन सी है वो फाइबर, that is nylon. Yes, nylon fiber was strong. These are the properties of nylon fiber. अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, mention the properties of nylon fiber. So it was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. Lustrous क्या होता है, जिसमें चमक होती है। ठीक है, और इसको धोना बहुत आसान है। It is very easy to wash, so it became a very popular for making clothes.
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं, व्हाई नायलॉन बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इस तरह से भी आ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, उस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना है आंसर करने के लिए। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, toothbrush, car, seat belts, sleeping bags, curtains. तो these are the uses. These are the uses of nylon. ठीक है, तो nylon is इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लें बूचो का क्या कह रही है। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उनसे पैराशूट्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर जब हम माउंटेनरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे, तो जो रोप्स होती हैं क्लाइंब करने में जो हेल्प करती हैं, क्या वो भी नायलॉन की हो सकती हैं? तो बूजो का क्वेश्चन बहुत फेयर है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्लियरली लिखा है यहाँ पे, यस, बूजो का आंसर मिल गया उसे। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नाउ अंडरलाइन दिस लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की है नायलॉन थ्रेड की, जो कि स्टील वायर से भी ज्यादा है। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 3.1 दी है, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप। ठीक है, क्लैंप होता है जो होल्ड करके रखता है उसको। Take a cotton thread of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5 at the free end. Suspend. Suspend करके रखो इसको, an iron stand with thread hanging from the clamp. ठीक है, ये एक्टिविटी आपने कर ली। इसके बाद you have to pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. आपने उसके ऊपर weight रखते जाना है जब तक कि वो thread टूट ना जाए। Now note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. आपने ये देखना कि कितना होल्ड कर सकता है वो फाइबर, तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी हमें नायलॉन फाइबर की। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। आप डिफरेंट दूसरे भी इसमें फाइबर्स यूज कर सकते हो, सेम एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हो। नाउ टैबुलेट द डाटा शोन इन टेबल 3.2, अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। जब आपने कॉटन फाइबर के साथ वूल, सिल्क, नायलॉन सबके साथ कर लिया ये एक्टिविटी, तो जो टोटल वेट रिक्वायर, मतलब कितना वेट आपने रखा कि तब थ्रेड जो है वो ब्रेक हुआ, तो उसको आपने इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ की ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यू मे यूज अ हुक और अ नेल on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. Now in place of weights you may use marbles also, pebbles also of similar size. आपने प्रिकॉशन क्या रखनी है आपने कि all the threads should be of same length and almost of the same thickness. ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी की लेंथ आपने ज्यादा ली है, कॉटन फाइबर की ज्यादा ले ली, वूल की कम ले ली, सिल्क की ज्यादा ले ली, तो लेंथ आपने फाइबर की सेम लेनी है, थिकनेस बराबर होनी चाहिए। तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ज्यादा वेट होल्ड कौन करेगा, वही करेगा भाई जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होने वाली है, नायलॉन की। Now next is polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही सिंथेटिक फाइबर्स का है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आप सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ोगे। Now fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. अब यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करो कि wrinkled का मतलब क्या होता है। बेटा जब हम कपड़े धोकर अपनी अलमीरा में रख देते हैं ना, बिना उनको फोल्ड किए प्रॉपरली, है ना, मैनेज किए, बिना प्रेस किए, और उनके ऊपर रखते जाते हैं, बाद में जब पहनने के लिए निकालते हैं तो कैसी उनकी शक्ल होती है, दे आर सच लाइक, कैसी, उनको नाम क्या देंगे हम, दे आर रिंकल्ड। ठीक है, उनमें सलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसका और भी एक अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। आप कॉटन के कपड़े हैं, ठीक है, उनको आप बिना प्रेस फोल्ड किए हुए रख दो, ठीक है, तो वो पहनने लायक नहीं होते, बिकॉज उनमें बहुत सारे बल पड़े होते हैं, सिलवटें पड़ी होती हैं, है ना, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेल टाइडी, नहीं लगते वो, दे आर रिंकल्ड फॉर्म, है ना। तो इस फैब्रिक की हम बात करेंगे पॉलिस्टर की, तो ये ऐसे फाइबर से बने हैं that does not get wrinkled easily, जो आप जैसे मर्जी इसको रखो, बिना फोल्ड किए हुए रखो, तो इनमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इजी टू वॉश, है ना, हमेशा क्रिस्पी से रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, प्लेन रहेंगे, इजी टू वॉश है, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपके घरों में भी होंगे, यू कैन सी। Terraline is a popular
पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर में जो फेमस पॉलिस्टर है आपके पास, दैट इज टेरेलिन. इट कैन बी drawn into very fine fibers that can be woven like any yarn. Now my mother always buys pet balls, PET, okay, and pet jars for storing rice and sugar. तो यहाँ पे पेट जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब है पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट. ओके, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट. वो कहती है पहेली कि मेरी मम्मा जो है हमेशा खरीदती हैं ये बॉटल्स, है ना, और ऐसे जार्स में वो राइस और शुगर स्टोर करती हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि वाई ऑलवेज पेट, है ना, वही क्यों खरीदती हैं. तो पेट मीन्स पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट, ये इसका केमिकल नेम है. इट इज वेरी familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. अब यहाँ ध्यान क्या दोगे, यहाँ पे uses, एक तो पेट का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, पहली बात ध्यान से सुनो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लर्न करोगे आप, ठीक है. दूसरा, व्हाट आर इट्स यूजेस, जो साफ साफ लिखे हुए हैं, ठीक है. एनसीईआरटी की बुक में आप अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना चाहो तो बेटा बहुत सारे बनते हैं. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. अब अपने चारों तरफ देखो कि कौन कौन सी चीजें जो है वो पॉलिस्टर से बनी हुई है. पॉलिस्टर वर्ड 2 वर्ड से बना है, पॉली एस्टर. पॉली का मतलब पहले भी बता चुकी हूं मैं, मैनी, और एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है. इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. ओके, जो हमें स्मेल आती है, खुशबू आती है फ्रूट्स में से, वो किसकी वजह से आती है, केमिकल की वजह से आती है, जिसका नाम है एस्टर. ओके, नाउ fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. यहाँ पे polyester का poly word use कर लिया गया है और cotton का cot word. तो what is polycot? Polycot is a mixture of polyester and cotton. Remember this. Polywool is a mixture of polyester and wool. Okay. पॉलीवूल किसका मिक्सचर है बेटा, पॉलिस्टर का और वूल का. पॉलीकॉट किसका है, पॉलिस्टर एंड कॉटन का. तो ठीक है, ऐसे मिक्सचर के फॉर्म में भी हमारे पास फैब्रिक्स आते हैं, क्लोथ्स आते हैं. वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. मतलब बहुत ऐसे स्वेटर्स भी हम पहनते हैं सर्दियों में जो नेचुरल वूल से रिजेंबल नहीं करते, ठीक है. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. Very very important line, अंडरलाइन कीजिए इसको. ये नेचुरल वूल से तो नहीं बने होते, लेकिन जिस जो नेचुरल वूल की तरह दिखने वाली फाइबर से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से, दैट इज नोन एज acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. Now what is the difference between नेचुरल जो फाइबर है और जो सिंथेटिक फाइबर है, उसमें क्या फर्क है. अगर आप नेचुरल वूल की बात करोगे तो ऐसे स्वेटर्स आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिले, है ना. जबकि लार्ज स्केल पे जो ह्यूमन मेड है, सिंथेटिक है, इंडस्ट्रीज में मेड होते हैं, एक्रेलिक से बने हुए हैं, दे आर चीपर वन. सो दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल. ड्यूरेबल क्यों है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इनकी. एंड अफोर्डेबल क्योंकि चीप होते हैं, मैन मेड है तो जितना चाहे बना सकते हो. विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. और हर आर्टिफिशियल चीज में अट्रैक्शन होती है बेटा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना. प्योर चीज में अट्रैक्शन नहीं होती तो वो इतना पसंद नहीं आता लोगों को, लेकिन होती प्योर ही हमेशा अच्छी है. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. ठीक है. What did you observe? आपने 7th क्लास में किया होगा 3.6 exercise. When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. नहीं किया है तो अभी करके देख लो, ठीक है. आपके घर में कोई सिंथेटिक क्लॉथ पड़ा है, आप उसको बर्न करके देखो. आप तो एक तो उसको गंदी सी स्मेल आएगी उसमें से, दूसरा वो जलने की वजह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा हीट होने पे. तो दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है. ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर 1 डाल लीजिए डिसएडवांटेजेस में.
इफ क्लोथ्स कैच फायर, मान लीजिए आपने सिंथेटिक कपड़े पहने और उनमें आग लग गई, है ना, बाई चांस, इट कैन बी डिजास्टरस, ये डिजास्टरस हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है, आप जल सकते हो क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन को बर्न करेगा साथ में। The fabric melts and sticks to the body of a person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. देख लिया आपने कि जिस चीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, कलरफुल होता है, वो कितनी नुकसानदेह होती है। तो हमें प्रेफर करना चाहिए प्योर फैब्रिक्स को, ठीक है, नेचुरल फैब्रिक्स को। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे पहेली जी की। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अब पहेली को याद आ रहा है कि उनकी मम्मी कितनी समझदार थी, है ना, उनको सब कुछ पता था, ये उन्होंने चैप्टर पहले से पढ़ रखा था शायद, इसीलिए वो कॉटन के कपड़े पहनती थी, पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती थी, है ना। तो मम्मियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ हम बात करेंगे कि जितनी भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन के, दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। नाउ व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे आप। नेक्स्ट 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह के होते हैं वो। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, है ना, आप ये सोच लो कि बारिश हो रही है, तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज करना चाहोगे। सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब कुछ खासियत है इनमें जो ड्रेस मटेरियल के लिए यूज होते हैं या अम्ब्रेलास के लिए यूज होते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, अंडरलाइन दिस। दे आर ड्यूरेबल, स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण ड्यूरेबल ज्यादा है। लेस एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन ज्यादा है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो लेस एक्सपेंसिव होंगे। रेडिली अवेलेबल, ज्यादा अमाउंट में है तो अवेलेबल भी होंगे मार्केट में, डिमांड ज्यादा है। एंड इजी टू मेंटेन, जैसे हमने पढ़ा रिंकल फ्री होते हैं, ये रिंकल्स नहीं पड़ते, इजी टू वॉश होते हैं। तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, एक और एक्टिविटी है, बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। नाउ इन एक्टिविटी 3.2 what we have to do, take two cloth pieces of the same size, okay, same size के लेने हैं, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber से बना होना चाहिए उनमें से एक, the other could be synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces, okay, मम्मी ज्यादा हेल्प करेंगी इसमें। soak the pieces in different mugs में इनको भिगो दो अच्छे से, each containing the same amount of water, लेकिन दोनों मग्स में पानी भी सेम होना चाहिए, ठीक है, एक तो हमने लेंथ सेम लेनी है उनकी, दूसरा हमने पानी भी बीकर्स में सेम लेना है। नाउ टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपने क्या करना है, उन कंटेनर्स में से वो पीसेस लेके उनको 5 मिनट तक धूप में रख देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब आपकी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है कि आपने देखना है दोनों कंटेनर्स में कितना पानी रिमेनिंग है, ठीक है, ये एक्टिविटी करने के बाद। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। यहाँ मैं आपको आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है, क्योंकि बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, आप खुद करके देखो इसको। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा आफ्टर द एक्टिविटी। फाइंड आउट फ्रॉम योर parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. अपने अपने पेरेंट्स से बात करके डिस्कस करके ये पता लगाना है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, कितने का खरीद के लाए थे आप इसे, इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, कैसे वॉश करते हो। देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लास्टिक्स। Yes, you must be familiar with many plastic articles using every day. Make a list of such items and their uses. मुझे लगता है लिस्ट कम पड़ जाएगी और आइटम्स बढ़ जाएंगी आपकी, इतनी ज्यादा प्लास्टिक आर्टिकल्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3.6 में देखो आप लोग, एक तो सिंपल चेन दे रखी है ए पार्ट में और बी पार्ट में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स दे रखी हैं। नाउ नेक्स्ट इज
प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. दोनों में सिमिलैरिटी है ये. What is the similarity between plastic and synthetic fiber? Both are polymers. Okay. All plastics do not have the same type of arrangement units. जैसे अभी मैंने बताया, जो simple है that is called linear, whereas the other is it is cross-linked. Now plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable. ठीक है, that is can be shaped in any form. क्यों इतनी सारी आइटम्स हमारे पास है? कभी आश्चर्य हुआ? यस, इसके पीछे राज क्या है कि हम मोल्ड कर सकते हैं प्लास्टिक को, कोई भी शेप दे सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, और भी उससे अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकल यानी दोबारा उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर को, उनको कोई भी कलर दे सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. भाई जो मर्जी कर लो, प्लास्टिक कहता है मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ आपको. मैं इजीली मोल्डेबल हूँ, जैसी मर्जी मुझे शेप दे दो, जैसा मर्जी कलर दे दो, जैसे मर्जी मुझे रीयूज कर लो. भाई इतना अच्छा और कहाँ मिलेगा. दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस. देखो आप अपने घर में ही अगर नजर घुमाओगे, यहाँ पिक्चर्स क्या देखनी है, ये तो बहुत लिमिटेड सी पिक्चर्स है. आप अपने घर में देखिए कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई हैं. वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स. नाउ पॉलीथीन की बात करें हम, तो पॉलीथीन को आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो दो वर्ड को, ठीक है, इसको अलग अलग कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, पॉली प्लस इथीन. जैसे हमने पॉलिस्टर को किया था ना, पॉली प्लस एस्टर, वैसे पॉलीथीन को कर दो पॉली प्लस इथीन. तो पॉली का मतलब क्या है? मैनी. और इथीन यहाँ पर आपके पास फिर से आ गया एक ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, जितना जो आप पॉलीथीन यूज करते हो, प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है बेटा. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. ऑब्वियस है, जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं वहां पर ये प्लास्टिक यूज हो रहा है. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली? भाई मैं अपनी ओपिनियन दे दूं आपको, वैसे तो आपको भी पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. सारे के सारे प्लास्टिकल आर्टिकल्स जो हैं वो आराम से तो नहीं बेंट होने वाले. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंट इजीली, है ना, while some break when forced to bend. कुछ तो बहुत इजीली बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ पे अगर आप जोर लगाने की कोशिश करोगे तो वो दम तोड़ देंगे, टूट जाएंगे. When we add hot water to a plastic bottle, ये करके देख लो बेटा. ठीक है, जो जिसकी जरूरत नहीं है बॉटल की प्लास्टिक की, वो यूज कर लो. हॉट वाटर डालो, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, उसकी शेप बदल जाएगी. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. This is the definition of thermoplastic. कि जो प्लास्टिक हीट करने पर इजीली अपनी शेप चेंज कर देती है, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके, थर्मो वर्ड का मतलब है हीटिंग से रिलेटेड है ये वर्ड. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. तो ये अंडरलाइन कर लो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक? पॉलीथीन एंड पीवीसी. दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज. अब यूज लिख लो इनका आगे, थर्मोप्लास्टिक्स का कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये टॉयज को मैन्युफैक्चर करने में. जो कौन सा आप यूज करते हो, कंघी करते हो ना जिससे, वो. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. लेकिन ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार मोल्ड हमने कोई शेप दे दी, अब उनको सॉफ्टन नहीं कर सकते, हम उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. क्या बोलते हैं इनको बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. टू एग्जांपल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन. अंडरलाइन दीज वर्ड्स, याद करने हैं आपको, याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? बेकलाइट एंड मेलामाइन. Now what is bakelite? It is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, and melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. ठीक है, ये फायर को रेजिस्ट करता है बेटा. तो ये कहाँ पे यूज होता है? किचन वेयर, जो किचन में हम लोग यूज करते हैं ना, है ना, एंड फैब्रिक्स, उसमें यूज होता है. फ्लोर टाइल्स में यूज होता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. आपको यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स, यूजेस, सब कुछ याद करने हैं.
The various uses of thermoplastic and thermosetting plastics 3.8 में आपको शो हो रहे हैं. देखिए ये आपके घरों में भी हैं, ये स्विचेस आप देखते हो, रोज ऑन ऑफ करते हो इनको, है ना. दीज आर्टिकल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ठीक है. और थर्मोप्लास्टिक से देखो जो अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे ये जार है, वायर्स हैं, इनको हीट करेंगे तो ये थर्मोप्लास्टिक्स अपना जो है डीफॉर्म हो जाएंगे, अपनी शेप चेंज कर देंगे. ठीक है. Now next is your plastics as materials of choice. Today we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food. तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, हमें सस्ते मिल जाते हैं, लोअर प्राइस होता है उनका, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, इजी हैंडलिंग है, यहाँ से वहां ले जा सकते हो, गिर गया तो टूटेगा भी नहीं, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है. बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू. ठीक है. अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि why as compared to metals plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts. तो आपका आंसर क्या होगा, बीइंग लाइटर. ठीक है. इसकी क्वालिटी ये कि ये लाइट होता है मेटल से, इसलिए ये यूज होता है वहां पे. द लिस्ट इज एंडलेस. एंडलेस लिस्ट है, पहले भी मैंने बताया. इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, तो पता नहीं कहां तक लिस्ट पहुंचेगी, वी डोंट नो. Now let us discuss the characteristic properties of plastic. हम प्लास्टिक की characteristics, उसकी properties discuss करते हैं. Plastic is non-reactive. ये non-reactive होती है. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. जंग लग जाता है ना लोहे में अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें तो. लेकिन प्लास्टिक्स पानी और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशंस में. मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मल कंडीशंस में. ठीक है. हीट ज्यादा होगी तो मैं कह सकती हूँ रिएक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं. दे आर नॉट corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. Now plastic is light, it is strong, it is durable. जो strong और durability वाला part है प्लास्टिक का, ये तो सिंथेटिक फाइबर से बहुत मिलता है ना. Now talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. ठीक है. पहले वो कैसी बकेट्स यूज करते थे, मग्स कैसे यूज करते थे, आज कैसे यूज कर रहे हैं, है ना. तो क्या फायदा है प्लास्टिक कंटेनर्स को. पहले ना लोहे की बाल्टियां होती, इतनी हैवी होती थी, पानी से ज्यादा तो उनका खुद का वेट होता था, है ना. लेकिन अब क्या है, प्लास्टिक की बाल्टियां इतनी हल्की, मजेदार. Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. Now it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that use in our daily life. Now plastics are poor conductors. यहाँ conductors मैंने आपको समझाया था, क्लास 7th में भी ये चैप्टर है. तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, which can allow heat or electricity to pass through them, है ना. You have learned these plastics and poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic, है ना. क्योंकि हमें करंट नहीं लगेगा, हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा प्लास्टिक के ऊपर. दे आर द पुअर कंडक्टर्स, तभी वो यूज होते हैं. एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. नाउ डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर packagings of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments. They are made up of plastic. Now, special plastic cookware is used in microwave ovens. यहाँ तो uses ही बहुत दे रखे हैं plastics के. For cooking food in microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. No, Teflon एक word आया है यहाँ पे, इसको underline कर लो जरा. This is important. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. ठीक है. जिसमें पानी और जो oil है वो stick नहीं करता. It is used for non-stick coating on cookwares. तो यहाँ पे देखो आप, टेबल 3.3 बना हुआ है जहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट लिखा है, कितना जनरेट होता है, नेचुरल मटेरियल लिखा है. इससे पहले हम यहाँ पढ़ लें जरा. फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं बच्चे. ठीक है. नाम से ही पता लग रहा है. ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजिली, हमने पढ़ा था. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन
have coating of melamine plastic to make them flame resistant. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट. तो ये बहुत करंट इशू है बच्चे. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स. तो हमारे पास बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो इकट्ठा हो जाता है घरों में. तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इसको कूड़े में फेंकते हैं. तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. व्हाई, क्यों, ये क्वेश्चन फिर बन गया आपका. क्वेश्चन ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में. व्हाई द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. बस खत्म होने वाला है बेटा, थोड़ा सा पार्ट रह गया आपका. A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ये तो आपने पढ़ाई है पिछली क्लासेस में, ठीक है ना. नेचुरल प्रोसेस से जो चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. लेकिन a material which is not easily decomposed by natural process that is known as non biodegradable. ये आपका 6th क्लास में बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दे रखे थे उसमें. तो इस टेबल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेस्ट है, टाइप ऑफ वेस्ट, ये कितना टाइम लगाता है डिकम्पोज होने में और इसका नेचर कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लास्टिक बैग, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखोगे क्योंकि ये बहुत टाइम लगाते हैं. Now the last portion of this chapter is, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly, it causes environmental pollution. तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज आ गए अब यहाँ पे. द बर्निंग प्रोसेस जो है सिंथेटिक मटेरियल का क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स प्लास्टिक की हैं, तो ये आपने याद कर लेनी है, पॉइंट वाइज लिख लेनी है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड. अब जो क्वेश्चन आपके पास है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें हम. हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज. देखा होगा एनिमल्स को गार्बेज खाते हुए आपने, है ना. कॉमन सी बात होगी ये. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलिथीन भी खा जाते हैं, साथ में बैग्स भी, रैपर ऑफ फूड भी. तो आप इमेजिन करोगे कि क्या होता है उनके साथ. द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स. ठीक है, इन एनिमल्स के गले में जाके चोक यानी उसका रास्ता रोक देना, बंद कर देना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, टू फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी कॉज देयर डेथ ऑल्सो. ठीक है, तो देखो कितने हार्मफुल है उनके लिए. द पॉली बैग्स केयरलेसली thrown here and there are responsible for clogging the drains. यहाँ वहाँ फेंक दो आप पॉली बैग्स को, ड्रेन्स को क्लॉग कर देंगे. ठीक है, फ्लड लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं. समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट, जहाँ दिल किया वहां फेंक दिया, रोड में, पार्क में, बिस्किट्स के ईटेबल्स जो भी हैं फेंक देते हैं. पिकनिक प्लेसेस पे जाते हैं वहां गंद फैलाते हैं. शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो. दो बार सोच लें इसके बारे में. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कुछ काम कर लें हम साफ सफाई रखने में, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है, पब्लिक प्लेसेस है, फ्री ऑफ प्लास्टिक रहे. तो अगर ऐसा हम सोच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज इससे बुरी बात कोई नहीं. तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक के यूज को जितना हो सके. और अगर हम इसे यूज भी कर रहे हैं, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन बैग यूज करो, जूट बैग यूज करो शॉपिंग के लिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, दे शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली. ठीक है, बार बार ये अभियान चलता है लेकिन कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि लोग स्टिक नहीं होते रूल्स में. अलग अलग डस्टबिन यूज करो क्योंकि हमें पता है ये रिसाइकल हो जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसने डिकम्पोज तो होना नहीं है ना. तो रिसाइकलिंग के लिए भेजो इसको. इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. ओके, now make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its usage, especially for storage of food. Now, as a responsible citizen, remember the 5R principle, the most important principle, that is, what are these 5Rs? Number 1, reduce. Second, reuse. Third, recycle. Fourth, recover. And fifth one is refuse. Reduce यानी खरीदो मत, मिनिमम खरीदो, कम यूज करो. रीयूज यानी ले आए हो तो खाली होने पर दोबारा से इसको यूज कर लो. देन नहीं करना तो फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दो. अदर यूजेबल फॉर्म में वो आपके पास आ जाएगा वापस. देन अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, रिकवर करो, उनकी जगह किसी और चीज को यूज करो. एंड रिफ्यूज, और मना कर दो उनको यूज करने से कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको डिकम्पोज करना मुश्किल है,
तो बेटर है कि इसका अल्टरनेट यूज किया जाए। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करो, बिकॉज हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे तभी इन्वायरमेंट हमारा ध्यान रखेगी, नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां निकल कर सामने आएंगी कि हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे और उनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। नाउ फाइबर वाइज अगर हम देखें, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। कॉटन कैरी बैग्स यूज करो, ठीक है, जूट बैग यूज करो शॉपिंग के लिए जाओ तो। Try to minimize the use of plastic material. Example, use a steel lunch box instead of plastic one. ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये कीवर्ड्स हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर में। व्हाट यू हैव लर्नड, जो आपने पढ़ा है वो पॉइंट्स में यहाँ पे रिकैप्चुलेशन के लिए आपको दिया हुआ है। आई होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोर एंड मोर वीडियो शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।